Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all? I welcome you all on this wonderful learning platform, English proficiency classes started by Skill Fund and Siyasat. I'm your trainer, Hafiz Muhammad Aqib Safi Qasmi. Well, as I promised yesterday, that today I would be teaching common errors. Usually, when we write English and when we speak English, and जब हम लिखते और जब बोलते, we tend to make some mistakes. हम गलतियां करते, and some mistakes are very common. बाद mistakes है बहुत common, मतलब हर कोई वो गलती करता. And these are very small mistake with basic level of grammatical knowledge. अगर थोड़ी भी ग्रामर की नॉलेज रही तो वो गलतियों को ओवरकम करना आसान है, करेक्ट करना क्या है आसान है. Today in this class we will discuss all those commonly made errors. तो आज की जो क्लास है हमारी थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है, मोर नॉलेजेबल भी है, थोड़ी एडवांस्ड भी है सबके लिए. चलिए टॉपिक क्या है हमारी आज की? कॉमन एरर्स. अनयूजुअली जो गलतियां करते हैं इंग्लिश में बोलने में लिखने में वो कॉमन एरर्स है. तो हम क्या करेंगे पहले, बिकॉज माय टीम इज प्रेजेंट टुडे, आई एम एड्रेसिंग अवर ऑनलाइन स्टूडेंट्स कि आई विल डिस्प्ले सम सेंटेंसेस. थोड़े सेंटेंस डिस्प्ले करूंगा मैं, उसमें बात सही है बात गलत है. तो जो सही है वो तो छोड़ दीजिए, जो गलत है यू आर सपोज टू करेक्ट देम and write them. Okay, then inshallah I will correct your answers. Then we will in detail discuss all the rules. Okay, so first of all, the first that we have here is we have got 6 sentences. यहाँ पे 6 sentences है. I went there 3 days before. He did not came yesterday. She works for Amazon. I entered in a school. Myself Aqib Safi. I live in Hyderabad. One of my friend lives in Dubai. Okay, तो ये 6 sentences है. इसमें बात सही है, some are correct, some are wrong. तो जो wrong है आप उसको correct करके लिखिए. And Mohammed, make sure you correct them. Is the first sentence correct? I went there 3 days before. Just tell me yes or no. It's wrong. Second one, he did not came yesterday. Right? Okay. Third one, she works for Amazon. Right? Fourth one, I entered in a school. Wrong. Myself Aqib Safi, I live in Hyderabad. Correct. One of my friend lives in Dubai. Wrong. Okay, so let's see the answers here. The first one is wrong, second is also wrong, third is correct, fourth is wrong, fifth is wrong, and sixth as well is wrong. Okay, so we have got only one correct answer. All are wrong. Okay, अब ये गलत है तो गलत क्यों है और सही क्या आएगा? So let us discuss all these one after another. एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या था हमारे पास? I went there 3 days before. I said this is wrong. So why is it wrong? And what is the correct answer? See, the correct answer is, but little before, कि हम जब भी कोई टाइम को मेंशन करते पास्ट में, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, 1 महीना पहले या 5 मिनट पहले बोल के बोलेंगे तो बिफोर यूज नहीं करते हम. व्हाट डू वी यूज? अगो. हम क्या बोलेंगे? अगो. आई वेंट देयर अ वीक अगो, या अ वीक बैक भी बोल सकते हैं आप. आई वेंट देयर अ वीक बैक और अ वीक अगो, बोथ आर करेक्ट, बट अ वीक बिफोर इज रॉन्ग. ओके, अब एक मंथ की जरूरत नहीं है, 1 मिनट भी हो गया तो अगो बोलते. I saw him a moment ago बोलते, a moment before नहीं बोलते. Okay, I finished my work 2 minutes ago. Okay, if you remember when we were kids, when I was a kid especially, so we used to read story books long ago. एक जमाना पहले एक बादशाह था, उसका एक महल था. Okay, we all read such stories. So all such stories started with this phrase, long ago. Okay, see the answer here. I went there 3 days ago. Have you understood? Are we good to go? So क्या बोलेंगे जब भी आप पास का टाइम मेंशन कर रहे हैं तो बिफोर के बजाय इज इट वर्किंग? नो. Why? What's the problem? Unfortunately, we have been facing internet problem, so my team is unable to correct your answers. So let's see. Bear with me. Inshallah, after the class, I will see the answers. Next, he did not came yesterday. It is wrong. Okay, if you remember in our very initial classes we discussed this when we learned simple past tense. तो आपको बोला था ना रूल
कि कभी भी एक पास्ट में, एक सेंटेंस में दो पास्ट नहीं आते। नो डबल पास्ट इन अ सिंगल सेंटेंस। अब जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं उनको आइडिया नहीं होगा उतना, जो क्लासेस हमारे शुरू में हुए थे 10-8 कुछ क्लास थी वो, उसमें आपको पूरी डिटेल्स आए थे आपको। अब यहां देखिए जो डिड है ये किसका सेकंड फॉर्म है? ये डू का सेकंड फॉर्म है। कम किसका फॉर्म सेकंड फॉर्म है? केम किसका है? कम का है। सो डिड और केम एक साथ नहीं आते। तो क्या हो जाएगा जब ये फर्स्ट सेकंड फॉर्म है तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ही डिड नॉट कम यस्टरडे बोलेंगे हम, उन कल नहीं आया था तो ही डिड नॉट कम यस्टरडे। ओके, आपको बोलना है मैं नहीं लिखा तो क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट रोट नहीं बोलना। ओके, मसूद कल रात में नहीं सोया, कल रात मैंने स्लीप लास्ट नाइट। मुस्कान आप बोलिए कल मैं आई डिड नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। ओके, दूसरा बोलिए मैं सारा से नहीं मिली थी, आई डिड नॉट मीट सारा। ओके, सो डिड नॉट मेट नहीं बोलते, डिड नॉट एट नहीं बोलते। ओके, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म। ओके, दैट्स द रूल। चलिए नेक्स्ट वन, आई एंटर्ड इन द स्कूल। ये भी दिखने में सही दिख रहा कैसा भी। ओके, लेकिन यहां रूल क्या है कि इन इंग्लिश वी हैव समथिंग कॉल्ड रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। यानी गैर जरूरी तौर पर आप ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करें, वो नहीं करना। अब एंटर का मतलब क्या है बोलिए आप लोगों? अंदर जाना। गो का मतलब जाना, एंटर का मतलब किसी चीज के अंदर जाना। अब जब उसके अंदर पहले से अंदर का वर्ड है तो इनकी जरूरत क्या होता है आपको? ओके, व्हेन द एसेंस ऑफ इन, जो इनका जो एसेंस है ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एंटर, जब पहले से एंटर के अंदर इन है तो व्हाई डू वी नीड टू यूज एक्स्ट्रा इन? ओके, द आंसर इज आई एंटर्ड द स्कूल, दैट्स इट। आई एंटर्ड द ऑफिस। ओके, ये फिजिकल चीजों के वास्ते है। बट इफ यू एंटर एन अग्रीमेंट तो वहां पे यूज कर सकते हैं आप, वी एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट, देयर वी कैन यूज। बट बेसिकली व्हेन वी एंटर अ फिजिकल प्लेस, कोई ऑफिस में गए, कोई स्कूल में गए, कोई क्लास में गए, कोई घर में गए, तो एंटर हाउस बोलना अपन। आई एंटर्ड माई हाउस, मैं घर में गया। ओके, चलिए या ये तो बहुत कॉमन गलती है, अक्सर लोग करते। माई सेल्फ आकिब सफी, आई लिव इन हैदराबाद। ओके, ये जो माई सेल्फ है ना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये यूजुअली सेंटेंस के आखिर में आता। ये कब आता? हम जब ये बोलते हैं कि काम मैं खुद से करा। अब बोलना है एक पेंटिंग उतारा भाई, मैं बोल रहा हूं आई पेंटेड दिस माई सेल्फ, मैं खुद से उतारा। तो माई सेल्फ कहां पे आया? आखिर में आया। पहले आई बोले आप, माई सेल्फ रिफ्लेक्स करता आई को मिरर करता। ओके, आई डिड इट माई सेल्फ, मैं खुद से करा। यूजुअली टीचर्स क्या बोलते? डू इट योर सेल्फ बोलते, डू इट योर सेल्फ, खुद से करो। योर सेल्फ डू इट नहीं बोलते। तो यूजुअली रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ना, वो कहां पे आता? सेंटेंस के आखिर में आता। और वो भी कब आता? जब वहां पे सब्जेक्ट है, आई यू कुछ है, तो उसको रिफ्लेक्स करता हो। अब हजार बातों की एक बात भाई, माई सेल्फ होकर शुरू नहीं करना, आई एम बोलना बस। क्या बोलना? आई एम, या फिर माई नेम इज बोलिए आप। सो माई नेम इज आकिब सफी या आई एम आकिब सफी, आई लिव इन हैदराबाद। ओके, अगर आप शुरू करें माई सेल्फ आकिब सफी बोलते हो, क्या है वो? कंप्लीटली रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो स्टार्टेड नहीं है उसका वो। ओके, इट डजंट लुक गुड। आई एम आकिब सफी, आई लिव इन हैदराबाद, दैट्स करेक्ट सेंटेंस। शall I move on? या वन ऑफ, यहाँ पे माई मिस कर टॉपिक में भाई, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई, वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई। अब यहाँ पे देखिए, इसमें ये जो फ्रेंड है इसको एस लगता। क्यों लगता? क्योंकि हम यहाँ पे जो वन बोल रहे हैं, फ्रेंड्स में से एक की बात कर रहे हैं अपन, एक ग्रुप में से एक की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे वन ऑफ माई फ्रेंड्स। आपको बोलना है एक हमारे अंकल नलगुंडे में रहते, एक हमारे अंकल नलगुंडे में रहते, तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ माई अंकल्स। तो जब भी आप सेंटेंस शुरू करेंगे वन ऑफ से, तो हमेशा क्या करना? आगे जाके एस लगा देना। ये भी कॉमन गलती अक्सर लोग करते। अब बोलना है एक प्रॉब्लम ये भी है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स बोलना, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हैदराबाद में एक हॉस्पिटल ऐसा है, वन ऑफ द हॉस्पिटल्स। ओके, सीधा आंसर वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन दुबई। ओके, अब यहां क्वेश्चन होता माई फ्रेंड्स प्लूरल है, लिव एस क्यों आया? इफ यू रिमेंबर, हम जब पढ़े थे प्रेजेंट सिंपल टेंस,
वहां यूज करते कि एस कब आना कब नहीं आना। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज एस। तो ये लिव को एस इसलिए आ रहा कि वन से ताल्लुक है इसका, वन लिव्स। ओके, सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स लिव्स इन दुबई, वन ऑफ माय अंकल्स इज अ टीचर। क्या बोला मैं? वन ऑफ माय अंकल्स इज अ टीचर। आप बोलिए सारा, हमारे एक भाई डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर। वन ऑफ माय ब्रदर्स इज अ डॉक्टर। तीसरा आप बोलिए, एक हमारे एंटी टीचर है। ये आंटी इंग्लिश में उर्दू वर्ड है, आंट्स बोलते इंग्लिश में। वन ऑफ माय आंट्स इज अ टीचर। चलिए आप बोलिए हिना, एक हमारे सर गुस्से वाले हैं। वन ऑफ माय सर्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, हमारे एक टीचर बोले मेरे को, one of my teachers told me. So whenever you start a sentence with one of, make sure you add s, क्योंकि you are talking about a person in a group. टीचर्स में से एक टीचर, दोस्तों में से एक दोस्त, अंकलों में से एक अंकल। ओके, चलिए, so we are done with part 1. So I have got 3 sets here. एक सेट होगा हमारा, I taught you some rules. Now let's move on to set 2. Here also we have got again 5 sentences and same rule. Some of them are wrong, some of them are correct. Okay, identify the wrong ones and correct them. Start. I am good in maths. We'll discuss about this later. She is my cousin sister. I am thinking to buy a new car. Everybody are happy today. A question mark, that's wrong. Full stop आना यहाँ पे. Okay, just ignore it. This rule. ये सेंटेंस सही है गलत है बोलिए। गुड एट राइटिंग, गुड एट स्पीकिंग, जो भी वर्ब लगा रहे आप लगा दीजिए आईएनजी फॉर्म के साथ, और जो भी नॉन है नॉन देगा। सीधा आंसर, आई एम गुड एट मैथ्स, मैं मैथ्स में अच्छा हूं। चलिए मसूद बोलिए, मैं खेलने में खराब हूं। आई एम बैड एट प्लेइंग, आई एम बैड एट प्लेइंग। खेलने में अच्छा हूं, आई एम गुड एट प्लेइंग। खेलने में खराब हूं, आई एम बैड एट प्लेइंग। सो गुड एट, बैड एट। चलिए